children and all the teachers of Siddharth International School. We have gathered today virtually to hold a very interesting session on a very interesting topic. I think all the children love animals. हम जब भी बात करते हैं तो we always talk about our favorite animal. किसी को somebody likes dogs. Everyone has a lot of people have pets. किसी को ferocious lions पसंद है या किसी को birds पसंद है. But do we know the law behind protection of animals and how it is a fundamental duty to be compassionate towards them? I doubt that. इसीलिए for today we have kept a session on being compassionate towards animals and prevention of cruelty to animals act. So I would first of all welcome our resource person for the day, Sri Sumit Anandji. He is judge in Delhi Judicial Services and presently on deputation as Secretary, District Legal Services Authority East. Sir has a vast experience of around 8 years in holding courts, and today he is going to share his PPT and his experience and his views with us on the topic today, which is prevention of cruelty to animals. So I welcome you, sir, and I hand over the session to you. Over to you, sir. Hello. Hello. Is my voice audible? Sir, your voice is audible, but your PPT is has blackened out. Now, please. Yes, sir. Yes, sir. Now it is visible. I would request you to please make it full screen if possible. It is full screen from my side. Okay, sir. Then perhaps it will come full screen in a minute. Yes, sir. It is full screen now. So I would request you to please go ahead with the session. Thank you. At the outset, I extend my gratitude to District Legal Services Authorities Shahadra for arranging this very informative session on a very interesting topic. I thank the management and teachers, principal and vice principal of Siddharth International School for having this session for their children. I also thank all the students and children who have joined us today. Thank you for taking out time from your busy schedule. I know students are having very busy schedule nowadays, but still they have gathered in huge numbers. So we'll be now proceeding with our presentation and the topic, cruelty to animals. This session, the act and the laws relating to animal cruelty is very broad, very elaborate. However, today I have thought to keep it as short as possible. I'll be running through my presentation and giving you brief outlook about things because I want to save as much time as possible for question and answer session. And I welcome all the children who have any thought or any questions regarding the session to feel free to ask any questions. So now I proceed. As we all know that Mohandas Karamchand Gandhi, Bapu, the father of the nation, has left so many ideals and so many principles for us as a nation, us as citizens to follow. And he is an institution in itself, and till date, his talisman and the thoughts which he has left for the country to follow is not only followed in India, however, throughout the world. So, father of the nation, Bapu, with respect to animals, has once said that the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. बापू ने ये कहा कि किसी भी देश, कोई भी देश कितना महान है या कितना प्रोग्रेसिव है या कितना गतिशील है, उस देश के लोगों के मॉरल्स कैसे हैं, अगर आपने ये देखना हो तो आप ये जज करिए कि उस देश में एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है. और आप सभी बच्चे जानते होंगे गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा. दुर्गा माँ का वाहन क्या है, शेर. हमारे यहाँ पे हर एनिमल को, हर क्रिएचर को किसी ना किसी गॉड के साथ रखा गया है, गॉड के साथ एसोसिएट किया गया है. तो आप ये देखिए कि हमारी सोसाइटी बापू के कहने से पहले नहीं, बट कितनी सदियों से एनिमल्स को कितनी इंपॉर्टेंस देती रही है, उनकी कितनी
इम्पोर्टेंस को दर्शाती रही है, दैट हाउ इम्पोर्टेंट एनिमल्स आर। बट बापू ने इसको एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया कि अगर हम एज अ देश, एज अ कंट्री को कलेक्टिवली देखें तो भी हम ये जज कर सकते हैं कि एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आज हम ये सेशन कर क्यों रहे हैं? आज हमें एनिमल्स की याद क्यों आ गई कि हम बच्चों के लिए एक एनिमल्स पे सेशन करें? व्हाट वाज द रीजन? एंड द रीजन लाइज इन पार्ट 4 A of the Constitution of India, which deals with fundamental duties. And I am assuming कि DLSA शाहदरा ने जितना काम किया है अपनी डिस्ट्रिक्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड स्कूल्स जितना इंटरेस्ट लेते हैं सिविक्स में और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज में, आई एम श्योर दैट एवरी स्टूडेंट नोज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है। और इसमें एक ड्यूटी जो है, वो ड्यूटी ये कहती है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ ऑफ द लैंड हमारे ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन डालता है, हमारे ऊपर एक ये ड्यूटी देता है कि हम ऐसे काम करें, हम ऐसी अपनी ड्यूटीज निभाएं कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट हो, इम्प्रूव हो, हमारी जो लेक्स रिवर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, इम्प्रूव्ड रहे, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहे, इम्प्रूव रहे। और ना ही सिर्फ हमारी वाइल्ड लाइफ, बट हमारे जो क्रिएचर्स भी हैं, बाकी creatures which include all the animals, which includes milch animals, which includes street dogs, which includes even rats in our house, which includes lizards, that we should have compassion for living creatures. We men, human beings alone do not own this earth. We are a part of this earth in collective with the nature, and nature in itself includes living creatures. Not only animals but living creatures. Every living creature has his right over the earth like we have. So therefore we also have duty towards these living creatures. यहाँ पे सेशन में जाने से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक बहुत छोटे से ब्रीफ में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ड्यूटी है क्या? ये तो एक बड़ा वाइड स्टेटमेंट दे दी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट including forests like rivers and wild animals, and to have compassion for creatures. But how can we do it? हम कैसे कर सकते हैं? लोग कहते हैं हम अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं, बट हमें समझ ही नहीं आता हम अपनी ड्यूटी कैसे निभाएं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत छोटा सा टेस्ट देना चाहता हूं, विच विल बी अ टेस्ट, कि आप उस टेस्ट को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें, आपको पता लग जाएगा आपकी ड्यूटी क्या है। एंड दिस टेस्ट व्हाट आई कॉल इज द एक्सपेक्टेशन टेस्ट। एक्सपेक्टेशन टेस्ट, आपकी अपने पड़ोसी से क्या एक्सपेक्टेशन है। जिस दिन आपको यह पता लग जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है, सो यू कैन थिंक कि उसकी भी शायद मुझसे यही एक्सपेक्टेशन हो। जब आप एक्सपेक्टेशन समझ जाएंगे, नेबरर्स की आपस में क्या एक्सपेक्टेशन है, कंट्री की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, एनिमल्स की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी ड्यूटी क्या है। तो आपको एक बार कंपैशनेटली दूसरे के लिए, बीट एनिमल्स, बीट लेक्स, बीट रिवर्स, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। जस्ट फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, सपोज यू गो ऑन अ पिकनिक एट अ लेक, से दमदमा लेक और सोहना लेक, और आप वहां पहुंचो और वहां पे इतनी गंदगी हो, इतनी गंदगी हो। सो वॉज दैट योर एक्सपेक्टेशन कि आप वहां जाओ और आपको गंदगी मिले? द आंसर इज नो। सो देयरफॉर इट बिकम्स योर ड्यूटी कि जब आप वहां से वापस आए तो आप वहां गंदगी ना छोड़ के आए। सपोज आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने देखा कि एक आदमी एक स्टिक से एक डॉग, इज इट योर एक्सपेक्टेशन कि एक आदमी दूसरे को डॉग से मारे? इफ द आंसर इज नो, देन इट ऑल्सो बिकम्स योर ड्यूटी बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन कि आप वो चीज ना करें। अनलाइकली, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये देखा गया है, दूसरों से तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो ये ना करे, वो ऐसे ना करे, मेरे घर के बाहर गाड़ी ना खड़ी करे, या फिर वो डॉग्स को या कैट्स को कुछ ना कहे। लेकिन मुझे तो रैट्स बहुत बुरे लगते हैं, रैट्स को लेकर हम मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है, वी शुड नॉट बी सिलेक्टिव, वी शुड हैव कंपैशन फॉर लिविंग। रिसर्च है जो मैंने ऑनलाइन निकाला, और अगर आप स्टूडेंट्स चाहें तो आप भी इसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर हम इसको पढ़ें
कि ह्यूमंस और एनिमल्स का कोएग्जिस्टेंस कैसे रहा है, तो अगर हम इसको देखें, ह्यूमंस आर 0.01% of life on the earth, but we humans have destroyed already 83% of wild animals. 0.01% of humans have already destroyed 83% of wild animals, and this is first 2018. Now next अगर हम पढ़ें, 2 generations of human have killed more than half of the world's wildlife population. Only 2 generations. ये जो मैंने आपको कहा 83% वाइल्ड लाइफ खत्म हुई है, 0.1% नहीं, ये कई 100 सालों से नहीं हो रहा. ओनली 2 generations ऑफ ह्यूमन बींग्स. अगर हम एक जनरेशन की लाइफ 100 years भी मान ले, तो जस्ट इन लास्ट 200 years, and some of you students who have joined must be also having history and having history as a background stream or the core subject, you might be knowing that 200 years when it comes to history is nothing, is absolutely nothing. और सिर्फ 200 साल में हमने more than half of the wildlife population को खत्म कर दिया है. So see how much our food chain got disturbed due to this, जिसके इफेक्ट शायद हम देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं. This was another news which was widely reported. It said that it is estimated that each year 72 billion land animals are slaughtered for food. Every year हम लोग 72 बिलियन एनिमल्स को मार देते हैं, और ये चीज पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है. Around 1.2 trillion aquatic animals. 1.2 trillion. I'll request all the students to today do a small exercise. Write on a paper 72 billion. हमें सुनने में 72 बिलियन लगता है, हाँ 72 बिलियन या 1.2 ट्रिलियन. Try to write it on paper, and then you will be able to ascertain the magnanimity with which we are destroying our wildlife, we are destroying our creatures, we are destroying our aquatic life, which is very necessary for our coexistence. Without these animals, this planet may face an imbalance. So based on these two aspects, these reports, जो reports मैंने अभी आपके साथ साझा करी, आपको बताई कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का, और फंडामेंटल ड्यूटीज को मद्देनजर रखते हुए आज का हमने ये सेशन रखा है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स. ये एक फोटो है जो आप अपने इस पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर. लोगों ने लेपर्ड को मारा हुआ है. लेपर्ड इज अ फिरोशियस एनिमल. अब कुछ लोग इस पे आर्ग्यू करते हैं कि भाई लेपर्ड आ गया, शहर में आ गया, लोगों ने अपनी जान की रक्षा करने के लिए उसे मार दिया. यहाँ पे मैं आप बच्चों से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, जो सवाल आपको हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए. क्या वाइल्ड लाइफ हमारे घरों में आ गई है, या हम वाइल्ड लाइफ के घरों में चले गए हैं? उनके पेड़ काट काट के, उनको नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर करके हमने उनके घरों में जगह बना ली है, और वो भटक गए इसलिए आ जाते हैं. और अगर एक वाइल्ड एनिमल आ भी गया है, सो डज इट डिजर्व अ डेथ लाइक दिस? एंड दिस लेपर्ड वाज किल्ड बाय बीटिंग ऑफ स्टिक्स बाय अ फ्यू मेन. और ठीक है, अगर उसको मार भी दिया, हालांकि इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस एंड वेरी सीरियस ऑफेंस, बट स्टिल, just like human beings even after death have dignity, even animals have dignity. Portraying it like this, showcasing it, it's absolutely wrong. This shows the perversity. This shows, यही शायद बापू कहना चाहते थे. बापू ने अपने थॉट में ये कहा कि अगर हमें अपनी सोसाइटी की मॉरल प्रोग्रेस को समझना है, अपने नेशन की ग्रेटनेस को समझना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा हम अपने एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते हैं. और आई थिंक दिस इज नॉट द वे वी ट्रीट आवर एनिमल्स. दिस इज द नेक्स्ट फोटोग्राफ. ये इंसिडेंट चेन्नई का है, और अगर आप लोग इसे गूगल करेंगे ये आपको मिल भी जाएगा. Here is a person who is standing on the 4th floor of a building. He takes a dog from downstairs to upstairs. चौथे माले पे लेके जाता है, and he actually threw this dog from 4th floor. यहां तक भी चलिए हम एक परवर्सिटी को समझ सकते हैं कि एक आदमी ने ऐसा कर दिया एक डॉग के साथ. But you know, this man got it filmed. He got it video recorded by another friend, and the same was circulated.
So is this the greatness of the nation? This is how we treat our animals? And this is the next photograph. This photograph is of Nagpur. There was a day when the Nagpur city woke up. It woke up to the stench and death of hundreds of dogs. Can you believe it? Hundreds of dogs. All these dogs were mass poisoned in Nagpur. And in the morning, there was a huge thing to get it cleared. These dogs were lying all over the road, poisoned and killed. Then this is the next photo. I think this is my second session which I am doing on animal cruelty, and I have attended a few sessions, just like you children may have attended the sessions, but this is one photograph which disturbs me the most. This photograph. आप सब बच्चों को ये बात मालूम होगी, हमने देखा होगा, हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, आगे डॉग सड़क पे लेटा होता है, हमारे फादर गाड़ी चला रहे होते हैं या हम खुद गाड़ी चला रहे होते हैं, वी जस्ट प्रेस वन हॉर्न, हम एक हॉर्न बजाते हैं और वो डॉग उठ के चला जाता है वहां से, वो रास्ता छोड़ देता है. Dogs, animals, they have good reflexes. They have an instinctive reflex. वो जहां पे भी देखते हैं कुछ थ्रेट आ रहा है, वो उठ के चले जाते हैं. बट दिस डॉग, एक सड़क बन रही थी आगरा में, इस डॉग के ऊपर जलता हुआ गरम गरम टार डाल दिया गया, टार डाल दिया गया. एंड कैन यू बिलीव कि इस डॉग ने अपना रिफ्लेक्स क्यों नहीं दिखाया? मुझे ऐसा लगता है, और ये भागा क्यों नहीं वहां से, मुझे ऐसा लगता है कि दिस वॉज डन विथ सच अ स्पीड, इतनी तेजी से किया गया कि उसे पता ही नहीं लगा कि ये हो रहा है. विच माइट, वी कैन ऑल्सो से माइट हैव बीन इंटेंशनल. क्योंकि अगर उसके ऊपर गरम गरम टार गिर भी गया, जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ, it could have been removed. This poor dog could have been saved by taking him to the nearest veterinary hospital. But the tar got solidified, और इस तरीके से इसके ऊपर ये डाल दिया गया. Then this is one very common sight जो हम लोगों ने देखी होगी. कभी हम लोग हाईवेज पे जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, या कुछ लोग जिनकी अभी भी जुड़ाव अपने गांवों से होगा, जो अपनी छुट्टियों में अपने नाना नानी, दादा नानी, दादा दादी, मामा मामी के पास के या किसी विलेज में जाते होंगे, वो वहां देखते होंगे कि वहां पे लोगों ने आज भी पशु रखे हुए हैं, मिल्च एनिमल्स रखे हुए हैं. मिल्च एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं. बट दिस इज द कॉमन साइट इन विच मिल्च एनिमल्स आर ट्रीटेड. यहाँ पे बच्चों, शायद आप इस फोटो से ये अंदाजा ना लगा पाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं हूं या आप हैं, आपके फादर्स हैं, बड़े ब्रदर्स सिस्टर्स होंगे, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो वेट होता है, इट इज 65 to 70 केजीज, एक एवरेज वेट. एंड children, we cannot bear 60, 65, 70 kgs on our two legs. कई बार हम एक पैर उठा लेते हैं, कई बार हम दूसरा पैर उठा लेते हैं, कभी हम किसी चीज से सपोर्ट ले लेते हैं, कभी हम कहीं पीठ लगा के खड़े हो जाते हैं. तो जस्ट 65 केजीज हम कॉन्स्टेंटली अपनी दो लेग्स पे नहीं उठा सकते. वी नीड टू शिफ्ट आवर बैलेंस, वी नीड टू मूव अ बिट. एंड अ बफेलो और अ कैमल और एन एलिफेंट फॉर दैट मैटर, जब वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उन्हें इस कदर बांध दिया जाता है कि वो एक इंच भी नहीं हिल पाते. They cannot even move 1 inch. And can you believe the weight of a buffalo, which is somewhere around 800 kgs, 700 kgs? 700 kgs का वजन वो अपनी टांगों पे उठाते हैं without the capacity to move. इस पे इतने रूल्स हैं, इतनी गाइडलाइंस हैं, इतना सब कुछ लॉज पास किए गए हैं दैट हाउ टू ट्रैवल मिल्च एनिमल्स, हाउ टू ट्रांसपोर्ट मिल्च एनिमल्स, एक जगह से दूसरी जगह कैसे उनके कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, कितना ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, कितना खाने का या पानी पीने का इंतजाम होना चाहिए. बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दिस इज इवन टुडे अ कॉमन साइट. आवर एनिमल्स आर ट्रांसपोर्टेड लाइक दिस. This is one photo of a recent incident which I am sure that everyone would be knowing about a pregnant elephant which was fed pineapples filled with crackers. I think जो बापू कहना चाहते थे कि हम अपने नेशन की प्रोग्रेस, अपने मॉरल्स को एनिमल से समझें, आई थिंक वी हैव डिग्रेडेड एज अ सोसाइटी कि हम अपने एनिमल्स को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. This photo was taken approximately 2 to 3 days after the animal had eaten those crackers in the pineapple. It kept on standing inside the water only to get comfort. But still, जब उसके साथ एक cruelty हो गई, even then no immediate relief was given.
to the animal, and finally this elephant was died. And you all must be knowing that what is an elephant. An elephant is our heritage animal. एक तरफ हमने अपने एलिफेंट को हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया है, और दूसरी तरफ हमारे एनिमल्स के साथ इस तरीके की क्रुएलिटी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले ये कहूंगा कि ये क्रुएल्टी किसी बच्चे ने तो नहीं करी, किसी स्कूल स्टूडेंट ने तो नहीं करी, हम लोगों ने नहीं करी। देन व्हाई दिस सेशन फॉर अस? चिल्ड्रन, you are our future. You are our future leaders. Not even if not in political sense. कल को आप में से पता नहीं पॉलिटिक्स में कोई जाता है, even then you are आपसे हैं, नेशनल कंपनीज में काम करेंगे। आपको ये सारी चीजें बताना, आपको इसके बारे में जागरूक करने का पर्पस ही हमारा यही है कि आप अगर क्रुएल्टी नहीं करते, वी आर ग्लैड, वी आर हैप्पी, बट आप किसी को करने भी ना दें। जब कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, देन यू हैव टू एक्ट। आपको उसके आवाज उठानी है। आपको भी ये काम करना है कि एनिमल्स ऑल्सो हैव इक्वल राइट ऑन दिस प्लैनेट। अगर कोई एनिमल हमारी एग्रीकल्चर फील्ड को, प्रोसीड्स को, हमारी जो हमने फसल लगाई है उसे खराब कर रहा है, हम अपने खेत को तो कभी कहीं और नहीं लेके जाते कि यहाँ एनिमल आ रहा है, बट द ओनली easiest way we find is to kill the animal. This mentality has to somehow go, and administration and society and governments have made various rules about that. बहुत से कानून बना दिए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन कानूनों का पालन नहीं होता। और मेरे को एज अ जज, मैं 8 साल से अब कोर्ट्स में केसेस देख रहा हूं, मेरा एक ये व्यू है कि लोग अगर कानून का पालन नहीं कर रहे तो उसके सिर्फ 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि उन्हें शायद उस कानून के बारे में पता ही नहीं है, और दूसरा ये कि उन्हें कानून के बारे में अगर पता भी है तो वो डरते नहीं। तो शायद समय अब आ गया है कि जो भी कानून में किसी गलत काम के लिए, किसी ऑफेंस के लिए अगर सजा दी गई है, तो वो पूरी सजा उस इंसान को दी जाए अपने एक्ट के लिए, अपनी गलती के लिए, अपने गुनाह के लिए। तो तभी हम इन सारी चीजों को होने से रोक पाएंगे, एनिमल्स पे जो क्रुएलिटी हो रही है उसे होने से रोक पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत से लॉज, बहुत से कानून बने हुए हैं एनिमल्स को लेके। सी, इन दिस स्लाइड इटसेल्फ आई हैव नोटेड 10 एक्ट्स के जिनके जो एनिमल से रिलेटेड बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, इंडियन पीनल कोड, परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स 2001, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ड्रॉट एंड पैक एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट एनिमल रूल्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके रूल्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल स्लॉटर हाउस रूल्स, एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल रूल्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली इतने कानून, इतने प्रावधान, इतने लॉज होने के बावजूद भी एनिमल्स पे क्रुएल्टी एक कॉमन साइट है। एनिमल्स पे क्रुएल्टी एक कॉमन साइट है, and we need to look into it, we need to check it, we need to raise our voice with respect to that. अब अगर हम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट की बात करें, तो यही चीज जो मैंने पहले कही थी, मेरा एक इसमें मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, इज मॉस्किटो और अ हेन और अ हनी बी और अ लिजर्ड एन एनिमल? जवाब आएगा सिंपलिसिटर, नो, a mosquito is not an animal, a hen is not an animal. Then why they find mention in the Prevention of Cruelty to Animals Act? Because प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है वो एनिमल की डेफिनेशन देता है और कहता है एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। एंड एनी लिविंग क्रिएचर में मस्कीटो भी आता है, हेन भी आती है, हनी बी भी आती है और लिजर्ड भी आता है। सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट का कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन हैविंग केयर और चार्ज ऑफ एनी एनिमल to take reasonable measures to ensure that well-being of an animal and to prevent infliction of unnecessary pain or suffering. अब हमें इस डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। Although a mosquito is an animal with respect to this case, this act, but अगर मस्कीटो पे कोई क्रुएल्टी होती है तो यूजुअली उसके लिए सजा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सजा होने के लिए
that particular animal should be under care or charge of somebody. And usually a mosquito cannot be under a charge or care of somebody. But a hen, but a honey bee, क्योंकि हनी बी फार्मिंग होती है, hen फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, वहां पर hen, हनी बीज, दे आर अंडर केयर एंड चार्ज ऑफ अ पर्सन. और अगर वहां पर ऐसा कोई भी काम किया जाता है जिससे एनिमल्स को अननेसेसरी पेन और सफरिंग होती है, देन इट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस. अब ये अननेसेसरी पेन और सफरिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में डॉग है, तो यूजुअली है कि डॉग को लंबी लीश पे रखा जाए, डॉग को थोड़ा सा लंबा मूवमेंट स्पेस दिया जाए, घर के अंदर उसे लीश पे ना रखा जाए. अब सपोज आपने डॉग तो रख लिया, लेकिन फॉर द लास्ट 1 मंथ आपने उसे एक ही जगह पे बांध के रखा हुआ है लीश के साथ, then it amounts to unnecessary pain or suffering to that dog, which becomes an offense under Prevention of Cruelty to Animals Act. एनिमल वेलफेयर, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है. बोर्ड के कुछ मेंबर्स होते हैं. इस बोर्ड का काम ये होता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि एनिमल्स पे कम से कम क्रुएल्टी हो सके. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट का जो सेक्शन 11 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है. जैसा कि अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि डॉग को अगर आपने शॉर्ट लीश पे रखा, छोटे ही लीश पे रखा, उसे बाहर घुमाने नहीं ले जा रहे, खाने को नहीं दे रहे, देन इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी. तो सेक्शन 11 हमें बेसिकली बताता है कि व्हाट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी. अगर आप क्या करेंगे एनिमल के साथ तो वो क्रुएल्टी बनेगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से, हालांकि पीपीटी है, वी कैन शेयर इट विद यू, बट आप सब इंटरनेट सेवी चिल्ड्रन हैं, आप गूगल पे जाके सेक्शन 11 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट निकालें, इसे पढ़ें, इसे समझें कि हमें एनिमल्स के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो इट विल बिकम क्रुएल्टी टू एनिमल्स, और जो कि एक ऑफेंस होगा एक एक्ट के अंदर. ये भी सेक्शन 11 ही है. अब हम बात करते हैं पेनल्टी की. अगर कोई आदमी एनिमल्स पे क्रुएल्टी करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? उसकी पहली पनिशमेंट ये है, मिनिमम 10 रुपीज का फाइन और मैक्सिमम 50 रुपीज का फाइन. अगर कोई भी एनिमल के साथ क्रुएल्टी करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको फाइन हो सकता है या तो 10 रुपए का या 50 रुपीज का. और अगर कोई दोबारा करता है सेम एनिमल के साथ ऑफेंस दोबारा कर देता है, तो उसकी सजा होगी मिनिमम 25 रुपए और मैक्सिमम 100 रुपीज, और सब्सिक्वेंट पे 3 महीने तक जेल भी हो सकती है. 3 महीने तक जेल. अब बहुत से एनिमल राइट एक्टिविस्ट, बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर ये फाइन बहुत कम नहीं है क्या? ये फाइन इतना कम क्यों है? बहुत से एजिटेशंस भी हुए, बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए कि इस फाइन को बढ़ाया जाए. सवाल ये नहीं है कि पनिशमेंट एडिक्वेट है या नहीं. क्या अगर पनिशमेंट ज्यादा होगी, खतरनाक होगी, डरावनी होगी, क्या तभी हम क्रुएल्टी करनी बंद करेंगे? सपोज अगर इसके लिए 2 साल की या 3 साल की सजा हो जाए, तो क्या हम क्रुएल्टी करनी बंद कर देंगे? द आइडिया इज टू चेंज आवर मॉरल्स. हमें अपने मॉरल्स चेंज करने की जरूरत है. और अगर कहीं स्टेट को ये बात पता लग गई कि ये लोग सजा के डर से काम नहीं करते, सजा के डर से क्रुएलिटी करनी बंद कर दें, तो माय डियर फ्रेंड्स, सजाएं बहुत सख्त हो जाएंगी. फिर तो हमें कंट्रोल ही सजा से कर लिया जाएगा. यहाँ पे हमें इस इशू में तो शायद जाना ही नहीं है कि 10 रुपए फाइन क्यों नहीं है और 10 से ज्यादा क्यों नहीं है. हमें उस आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि मेरा कन्विक्शन हो जाएगा, मेरी सजा हो जाएगी, चाहे सजा फिर मुझे 10 रुपए की हो, चाहे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगे, सजा तो सजा है. द आइडिया इज टू चेंज आवर माइंडसेट. और दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी एनिमल पे क्रुएल्टी होती है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंडर फॉल करेगा. वो और कई मल्टीपल एक्ट्स में फॉल कर सकता है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फॉल कर सकता है. और मैंने आपको अभी जो 10 एक्ट्स की लिस्ट पढ़वाई थी, उस उसमें फॉल कर सकता है. तो इन दैट केस ये फाइन सिर्फ 10 रुपए नहीं होता, फाइन और ज्यादा बढ़ जाता है. फाइन और ज्यादा बढ़ जाता है, सजा और ज्यादा सीवियर हो जाती है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि और भी एक्ट्स में वो हो सकता है. सपोज अगर हम किसी मिल्च एनिमल के साथ या किसी ऐसे एनिमल पे क्रुएल्टी करते हैं हु इज अ मिल्च एनिमल, जो मिल्क देता है,
तो देखिए यहाँ पे आईपीसी में सेक्शन 428 एंड 429 है, जिसके लिए सजा बहुत एनहांस करी गई है, जिसके लिए फाइन को भी बढ़ा दिया गया, जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट को भी बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर सजा 2 साल की कर दी गई। तो अगर कोई मिल्च एनिमल जैसे काउ, बफेलो, जो भी एनिमल हमें दूध देता है, अगर उसके ऊपर कोई क्रुएल्टी होती है, या फिर कोई बुल है, हॉर्स है, कैमल है, उसके ऊपर अगर हम कोई क्रुएल्टी करते हैं तो उसकी सजा बहुत सीवियर है, जो कि 2 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है उसमें। ये देखिए, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कोई आदमी कोई सजा करता है, तो यहां पर भी बहुत एक्सटेंडेड हाई सजा दी हुई है, उसके लिए बहुत ज्यादा सजा हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि कुछ लोगों ने लेपर्ड को मार दिया, तो लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल, सो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लगेगा, जिससे क्या होगा कि सजा बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हमें यह भी समझना है कि जैसे सेक्शन 11 था, वो हमें यह बताता था कि हम क्या क्या करेंगे तो वो क्रुएल्टी में आएगा। तो ये सेक्शन 7 ही बच्चों हमें यह भी बताता है कि क्या करना क्रुएल्टी में नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार काउस होती हैं, बफेलोज होती हैं, उनके हॉर्न्स नहीं होते, उनके हॉर्न्स हटा दिए जाते हैं। एंड उसका एक रीजन ये होता है कि काउस, बफेलोज ये फार्म में फ्री घूमते हैं, दे कैन कॉज इंजरी टू समबडी। सो सी हेयर, डी हॉर्निंग, अगर हम किसी को डी हॉर्न कर देते हैं, काउ या उसको, देन इट इज नॉट एन ऑफेंस। अगर हम स्ट्रे डॉग्स को लीथल चैम्बर्स में एज पर लॉ, एज पर प्रोविजन मारते हैं, या उन्हें सोसाइटी में उनका नंबर कम करते हैं, देन इट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। एनिमल्स को हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, दवाइयां बनाने के लिए, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। तो सेक्शन 11 में आप लोगों से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आप इंटरनेट पे उसको एक बार पढ़ें, उसको एक बार समझें। अब एक ही टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड फूका एंड देवदूम। ये मिल्च एनिमल्स पे करी जाती है, उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे मिल्च एनिमल अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लगता है। दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस विच एक्सटेंड्स पनिशमेंट अप टू 2 years। अगर कोई भी आदमी जो मिल्च एनिमल्स को पाला है, या उनकी केयर एंड कस्टडी में मिल्च एनिमल्स हैं, अगर वो किसी भी मिल्च एनिमल पे फूका या देवदूम, ये तो कॉमन वर्ड है, अगर हम इसको कुछ और साइंटिफिक वर्ड्स में भी कहते हैं, तो उनके साथ अगर कुछ भी ऐसा करता है जिससे कि उनको दूध देने की कैपेसिटी में ज्यादा वो बढ़ावा करता है, देन इट इज एन ऑफेंस, जिसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। और इसमें एक रूल ये भी है कि अगर कोई आदमी देवदूम या फूका करेगा किसी एनिमल पे, तो उस एनिमल को स्टेट अपने पास फोरफीट कर लेगी, फिर वो उन्हें नहीं मिलेगा। देन इट इज एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स परमिटेड है एक्ट में, इसकी परमिशन मिलती है, लेकिन लेकिन उसके प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं, गाइडलाइंस बनी हुई है। इवन अगर किसी एनिमल को एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया है, इवन देन जो उसके कंसर्न रूल्स हैं, एक्सपेरिमेंट एनिमल रूल्स, वहां पे भी ये लिखा गया है कि अननेसेसरी क्रुएल्टी वहां पर भी नहीं हो सकती। आप एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्रुएल्टी नहीं कर सकते, क्रुएल्टी वहां पे भी अलाउड नहीं है। अगर वहां भी क्रुएल्टी कोई करेगा एक्सपेरिमेंट के बियॉन्ड जाके, which will fall under the category of cruelty, even then he will be liable under the act. This is also relating to experiment on animals. Then there is a thing called performing animals. I think पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने ये देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन आई एम श्योर आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने ये जरूर देखा होगा, एंड दे कैन इन्फॉर्म यू अबाउट इट। पहले गलियों में, सड़कों में, इंडिया गेट पे बंदर का डांस, भालू का डांस, ये चीजें बहुत कॉमन होती थी। इनको बांध के लाया जाता था, डांस कराया जाता था। सर्कस में एनिमल्स बहुत कॉमन थे, बहुत कॉमनली यूज किए जाते थे। हाउएवर अब परफॉर्मिंग एनिमल्स के भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस बन गए हैं। इनको यूज नहीं किया जा सकता, और अगर इन्हें यूज करता है कोई, जैसे मूवी में अगर कोई एनिमल को यूज करता है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, प्रिकॉशंस हैं जो जो लेने हैं। तो परफॉर्मिंग एनिमल्स के पूरे रूल्स बने हुए हैं। एक एक परफॉर्मिंग एनिमल को अगर वो कहीं पे भी यूज हो रहा है, मूवी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, या कहीं पर भी और यूज हो रहा है, उनको प्रॉपर रजिस्टर कराना पड़ेगा, उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है,
उन्हें उन एनिमल्स को एक प्रॉपर डाइट देनी होगी, और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं होते देन अगेन इट बिकम्स एन ऑफेंस, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रूएल्टी, और उसके लिए सजा दी जा सकती है। ये जैसे हैं परफॉर्मिंग एनिमल्स की पेनल्टीज क्या क्या हैं। इसमें 3 महीने तक की सजा दी जा सकती है। अगर आप किसी एनिमल से कोई परफॉर्मेंस करवाते हैं, डांस करवाते हैं, और वो रजिस्टर्ड नहीं है एनिमल, तो सजा हो सकती है। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है तो सजा हो सकती है। अगर आप उसको किसी भी प्रकार की कोई क्रुएल्टी कर रहे हैं परफॉर्मेंस के टाइम पे, तो भी वो ऑफेंस है, उसके लिए सजा प्रोवाइडेड है। अब ये जो परफॉर्मिंग एनिमल्स हैं, इसमें कहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस एंड आर्मी हैज हॉर्सेस एंड म्यूल्स फॉर देयर पर्पज, वो उनके काम में मदद करते हैं, वहां पे करते हैं, तो वहां पर परफॉर्मिंग एनिमल्स रूल्स नहीं लगते। लेकिन वहां भी क्रुएल्टी नहीं कर सकते आप एनिमल्स के साथ। क्रुएल्टी वाला एस्पेक्ट जरूर लगेगा। आप काम करा सकते हैं उन एनिमल से, आर्मी में, पुलिस में, ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए, लेकिन क्रुएल्टी नहीं कर सकते। कोई भी आदमी, कोई भी एनिमल जो जूलॉजिकल पार्क में है और उसे एग्जिबिट किया जाता है लोगों के देखने के लिए, वो भी परफॉर्मिंग एनिमल्स के रूल्स में फॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर जू में भी क्रुएल्टी होती है, जू के लोग क्रुएल्टी करते हैं, देन इट विल बिकम एन ऑफेंस। एक ये सेक्शन है, सेक्शन 28, जो ये कहता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल रेंडर एन ऑफेंस टू किल एनी एनिमल इन मैनर रिक्वायर्ड बाय रिलीजन और कम्युनिटी। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हमारे जितने भी कानून बने हुए हैं, बहुत से कानून हमारी पर्सनल लाइफ को भी रेगुलेट करते हैं, हमारे रिलीजन को भी कहीं ना कहीं थोड़ी हद तक रेगुलेट करते हैं। बट पूरी कोशिश कानून बनाते हुए जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से ये रखी जाती है कि कोई भी लॉ पर्सनल लॉ में जो पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स हैं उन्हें कम से कम टच करे। तो यहीं पर यहाँ पर ये चीज इस सेक्शन 28 में दी गई है कि अगर कोई रिलीजन किसी प्रकार के एनिमल सैक्रिफाइस या किसी चीज के बारे में कहता है और वो उनके रिलीजन में प्रिस्क्राइब्ड है, और अगर उस पर्टिकुलर रिलीजन उसको मद्देनजर रख के अगर वो किया जाता है, देन इट विल नॉट बिकम एन ऑफेंस। अब है कि कोर्ट क्या कर सकता है अगर किसी आदमी पे क्रुएल्टी हो रही हो। इसको मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझाना चाहूंगा। सपोज आपके घर में एक डॉग है, उस पे क्रुएल्टी होती है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट आपको सजा तो देगी ही देगी, जो ऑफेंस प्रिस्क्राइब्ड है, जो फाइन लगना है या जो सजा होनी है वो होगी। बट आपसे वो एनिमल भी ले लिया जाएगा, वो एनिमल भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा, वो फिर स्टेट रन होम्स या कहीं पे चला जाएगा, तो आपसे वो एनिमल भी ले लिया जाएगा। अब एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑफेंसेस दो कैटेगरीज के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमने सेक्शन 11 पढ़ा, उसमें कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी डॉग को लात मार दी, बहुत जोर से लात मारी और डॉग बहुत दूर जाके गिरा, उसे बहुत दर्द हुई, चोट लगी, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल करेगा। विच मीन्स पुलिस उसमें बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर किसी ने किसी एनिमल को काट दिया, चाकू मार दिया और जान से मार दिया, देन इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। वहां पर उस आदमी को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो यहां पर भी सेक्शन 11 है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पे अगर आप लोग पढ़ सकें तो सेक्शन 11 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट को जरूर पढ़ें। अगर किसी कोर्ट को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्टिकुलर घर में, किसी पर्टिकुलर गोडाउन में, या किसी पर्टिकुलर फार्म हाउस में, या किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी एनिमल के साथ कोई क्रुएल्टी हो रही है, तो वो पुलिस को ऑर्डर कर सकते हैं, या पुलिस अपने आप ही बिना किसी ऑर्डर के उस घर में, उस गोडाउन में, उस फार्म हाउस पे जा सकते हैं, छापा मार सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां किसी एनिमल पे कोई क्रुएल्टी हो रही है या नहीं हो रही। और अगर वहां कोई क्रुएल्टी हो रही होगी, देन उस एनिमल को वहीं के वहीं सीज कर लिया जाएगा और कोर्ट में केस बना के दे दिया जाएगा।
ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स। अगर कोई एनिमल के साथ क्रुएल्टी होती है तो आप क्या कर सकते हैं या कोई और क्या कर सकता है? इसके लिए हमारे पास स्टेट रन ट्रीटमेंट एंड केयर एनिमल्स शेल्टर्स हैं। वहां पे जाया जा सकता है, उसको वहां ले जाया जा सकता है, पुलिस को रिपोर्ट किया जा सकता है कि कोई आदमी कहीं पर एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी कर रहा है, देन द कोर्ट एंड द पुलिस विल टेक देयर एक्शन। कई बार बच्चों आपने ये देखा होगा 15 अगस्त के आसपास या संक्रांत के आसपास जब काइट फ्लाइंग एक बहुत मेजर इवेंट होता है, काइट उड़ाई जाती है, तो कई बार हमने देखा है खासकर कबूतर, उनके पैरों में मांझा फंस जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कबूतरों को रेस्क्यू करते हैं, उनके पैर से उस मांझे को उतारते हैं, उसके बाद वो उस कबूतर को लेके वेटरनरी हॉस्पिटल में जाते हैं, स्टेट रन एनिमल केयर ट्रीटमेंट होम में जाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे हम एक लिविंग बीइंग है अर्थ के ऊपर, ऐसे ही एनिमल्स भी लिविंग क्रिएचर्स हैं अर्थ के ऊपर। जब हमें चोट लगती है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, वी ऑल्सो अंडरगो मेंटल ट्रॉमा। हम चुप हो जाते हैं कुछ दिन, थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ट्रॉमा में होते हैं, हमें एक चोट लग गई। बच्चों सेम थिंग हैपेंस टू एनिमल्स ऑल्सो। जब उन्हें कोई चोट लगती है, जब उन्हें कोई दर्द पहुंचता है, इवन दे फील ट्रॉमा। अगर हमने कबूतर के पैर से मांझा उतार दिया, हमें लगता है बस ठीक है ये उड़ गया, बात खत्म हो गई। स्टिल दैट एनिमल, दैट क्रिएचर माइट नीड ट्रीटमेंट एंड केयर एंड प्रोटेक्शन। उसको ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने अगर उसका मांझा निकाल दिया, वो उड़ गया, दैट्स वेरी गुड। बट स्टिल that bird or any particular animal who has sustained injury can be sent or can be taken to animal treatment care centers run by the state। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स बना सकती हैं एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए। बहुत से ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिनका मैंने पहले नाम लिया, परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ड्रॉट एनिमल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू स्लॉटर हाउस, प्रिवेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती हैं, और अगर रूल का कोई कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है तो उसकी सजा है 1,000 रुपए जुर्माना, या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब मैं आप लोगों से बहुत जल्दी डिस्कस करना चाहूंगा कुछ जजमेंट्स। जैसे कि ये पहली जजमेंट है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आगे एक पिटीशन लगा जिसमें ये कहा गया कि एनिमल्स को मूवीज में यूज नहीं करना चाहिए, उन पे क्रुएल्टी होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रिप्लाई मांगा। उन्होंने कहा यस, या तो हम एनिमल्स को बिल्कुल बंद कर देंगे, नहीं तो आप उनको परफॉर्मिंग एनिमल्स की कैटेगरी में ट्रीट करिए, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन कराइए। और इस जजमेंट में पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई थी कि एनिमल्स को कभी भी लाउड म्यूजिक सिस्टम के पास नहीं रखना चाहिए, उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने पीने को देना चाहिए, जो उनका एक्सपर्ट है, हैंडलर है, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। और हर मूवी की स्टार्टिंग में आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट नो एनिमल वाज हार्म्ड ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दिस मूवी। आप लोगों ने देखा होगा ये डिक्लेरेशन हर मूवी में आता है। जिस सीन में पर्टिकुलर एनिमल आता है, अब वहां पर भी ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ आता है दैट द एनिमल वाज नॉट हार्म्ड। दैट इज मैंडेटरी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। उसके बाद एक जजमेंट है अजय मधुसूदन मराठे वर्सेस सर्वोदया सीएचएस लिमिटेड। ये दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट का जजमेंट है। आप में से बहुत लोग अपार्टमेंट्स में रहते होंगे, सोसाइटीज में रहते होंगे, और सोसाइटीज में कई बार इस प्रकार का झगड़ा होता है कि डॉग तो आप रख सकते हैं लेकिन डॉग लिफ्ट यूज नहीं करेगा। अब एक आदमी 18वें माले पे रहता है, तो क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने डॉग को 18 माले सीढ़ी चढ़ा के लेके जाएगा? एक डॉग को दिन में 2 बार घुमाना होता है, तो क्या दिन में 2 बार 18 माले 15 माले नीचे आएगा, ऊपर जाएगा? कंज्यूमर कोर्ट ने कहा नो, dogs living in society with their masters have the right to use the lift। even dogs have right to use the lift, और कोई उन्हें प्रोहिबिट नहीं कर सकता। ना पेट्स रखने से प्रोहिबिट किया जा सकता है किसी सोसाइटी में, ना उनकी जो एम्यूनिटीज हैं उसको यूज करने से रोका जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बार सेशन ले रहा था तो मुझसे किसी ने बात करी और उसने कहा सर क्या फिर डॉग पूल में भी जा सकता है? क्या डॉग पूल में भी जा सकता है? तो यहां पर मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहूंगा, फंडामेंटल ड्यूटी
ask this question after asking yourself a question that do you expect it? अगर Excuse me, आपके sir. Sorry for expectation, interrupting you, but I have a question. can we I take my presentation? Can we take questions thereafter? The questions will be taken at the end, please. Okay. I'll take up all the questions. So Thank please continue. तो अब किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या डॉग को पूल में भी ले जा सकते हैं? आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं खुद से पूछिए. इज योर एक्सपेक्टेशन टू टेक डॉग इन द पूल? विल यू टेक इट? क्या आप करेंगे? इफ द आंसर इज नो, then you understand that your fundamental duty and your fundamental rights, you have to balance them at your own. Now this is the next judgment, which is state of UP versus Mustaqi. यहां पर इस जजमेंट में ये कहा गया कि अगर कोई आदमी एनिमल पे क्रुएल्टी करता है तो उससे वो एनिमल ले लिया जाएगा और उसे नहीं दिया जाएगा. उस एनिमल को गौशाला या पिंजरा पोल, जो कि स्टेट रन केयर और ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं, वहां भेज दिया जाएगा. Then there is this judgment, which is Gauri Manlekhi versus Union of India. बच्चों, आपने पता नहीं न्यूज में देखा या नहीं देखा, but approximately a few months back there was a very detailed article on this. नेपाल में एक फेस्टिवल होता है, गधीमाई फेस्टिवल, जिसमें हमारे यहाँ से इलीगली कैटल को ट्रांसपोर्ट करके वहां भेजा जाता है एंड दे आर सब्जेक्टेड टू सैक्रिफाइसेस. अब हमारा सेक्शन 28 है जो ये कहता है कि हम एनिमल्स का सैक्रिफाइस कर सकते हैं सब्जेक्ट टू आवर रिलीजन, बट वो हमारे देश के लिए है. इट इज फॉर आवर कंट्री, इट इज फॉर आवर सिटीजन्स, बट नॉट फॉर नेपाल. We cannot illegally transport animals to Nepal for sacrifice. तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को इमीडिएटली रोका जाए एंड दिस इज नॉट परमिसिबल. देन देयर इज दिस जजमेंट एनआर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहां पर क्या हुआ, वेलफेयर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि किसी भी सर्कस में कोई भी एनिमल, बी इट अ मंकी, बी इट अ बियर, बी इट अ टाइगर, बी इट अ लॉयन, किसी भी सर्कस में वो काम नहीं करेंगे, आप उनसे परफॉर्मेंस नहीं करा सकते. ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर को सर्कस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया. उन्होंने कहा कि इट इज आवर फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, कि हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, और वेलफेयर बोर्ड अगर हमें ट्रेड ऑक्यूपेशन करने में बाधा करता है तो हमारा फंडामेंटल राइट ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन का वायलेट होता है. इसलिए इस नोटिफिकेशन को कि एनिमल्स सर्कस में काम नहीं कर सकते, इसे सेट असाइड किया जाए. सुप्रीम कोर्ट सेड नो. सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली सेड एनिमल्स आल्सो हैव राइट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन सर्कस. इसके बाद एक क्वेश्चन है एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराजा. आप लोगों ने अभी देखा होगा 2 साल पहले जलीकट्टू, जो तमिलनाडु का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, वहां पे बुल्स भागते हैं, उसके पीछे लोग भागते हैं एंड यू हैव टू टच दैट बुल. बुल आगे आगे भागता है और लोग पीछे भागते हैं सिर्फ बुल को टच करने के लिए, एंड टचिंग द बुल इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन कर दिया. इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, बुल इज रनिंग एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर रनिंग बिहाइंड हिम, जस्ट ट्राई टू इमेजिन द स्केयर, द ट्रॉमा दैट एनिमल वुड बी अंडरगोइंग. अब लास्टली, what role do we have as an individual towards animal? As an individual हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स सिक और इंजर्ड एनिमल. पहली चीज, अगर घर में किसी को चोट लगती है हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड देते हैं. सेम थिंग, इवन इफ अ डॉग और एनीबडी इज इंजर्ड, यू हैव टू प्रोवाइड हिम फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड कैसे देंगे? ऑब्वियसली अगर हम उसके ऊपर डिटोल डाल देंगे तो हम उसकी पेन को अग्रवेट कर रहे हैं एक तरीके से, बिकॉज इट इज फॉर ह्यूमन यूज. इट हैज नो साइंटिफिक थिंग दैट इट कैन बी यूज, मे बी यूज फॉर एनिमल्स. सो द बेस्ट थिंग इज मूव द एनिमल स्लोली, ब्रिंग हिम इन शेड, गिव हिम सम वाटर, गिव हिम सम फूड टू ईट, पुट अ वेट टॉवल ऑन द एनिमल, उसके ऊपर एक गीला टॉवल डाल दीजिए, इन्फॉर्म वेटनरी डिपार्टमेंट, इन्फॉर्म पुलिस, इन्फॉर्म एनिमल वेलफेयर बोर्ड, इन्फॉर्म एनजीओज. यहां पर जब मैं पिछली बार कहीं सेशन ले रहा था तो
उन्होंने मुझसे कहा कि आपने यहाँ पे एनजीओज के हेल्पलाइन नंबर्स क्यों नहीं दिए, आपने वेटरनरी डिपार्टमेंट के नंबर्स क्यों नहीं दिए, आप हमें वो नंबर्स दीजिए। मैंने कहा कि ये नंबर्स मैंने बहुत कॉन्शियसली नहीं डाले हैं यहाँ पे, बिकॉज मैं ये नंबर आपसे शेयर कर सकता हूँ, बट आई एक्सपेक्ट दैट चिल्ड्रन टू गूगल इट फॉर अ मोमेंट. We are googling so many things, doing so much research. We can also google these small numbers, चार digits के numbers हैं, we can get them online. So I'll request all the children to just find out that wherever they live, which NGO works nearby them, which number veterinary hospital they have nearby him, who can they contact. तो ये जिम्मेदारी मैंने यही कॉन्शियसली सोच के ये नंबर्स यहाँ नहीं दिए, क्योंकि अलग अलग एरियाज में अलग अलग एनजीओज हो सकते हैं, ऑल्दो दे कम टू अदर एरिया, बट स्टिल इट इज फॉर यू टू फाइंड आउट. एंड व्हेन आई से रोल ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स एनिमल्स, सिक एनिमल्स, कि उन्हें पानी दीजिए, खाना दीजिए, आई हैव अ कॉशन टू रेज. डू इट वेरी कॉन्शियसली. टेक हेल्प ऑफ अदर पीपल who are kind hearted towards animals just like you. अगर आप अकेले कर रहे हैं, आप अकेले डॉग को या किसी भी एनिमल को जो इंजर्ड है उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल. इफ द एनिमल इज सिक और इफ द एनिमल इज इंजर्ड, द एनिमल will be furious. The animal will be furious. So you have to be very careful. बेस्ट यही होगा कि आप वेटरनरी डिपार्टमेंट या एनजीओ या वेलफेयर बोर्ड्स को इन्फॉर्म कर दें, वो आए, दे आर एक्सपर्ट इन दिस, वो अपना काम कर लेंगे. आपने अगर सिर्फ एक फोन कर दिया या उस जानवर के आगे पीने को पानी रख दिया, खाना रख दिया, आपने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी कर दी. और किसी सिक या किसी इंजर्ड एनिमल को टच करते हैं, ट्राई वियरिंग मास्क, ट्राई वियरिंग ग्लव्स, और अगर आप उसे टच करते हैं, डू वॉश योर हैंड्स वेरी वेरी प्रॉपरली आफ्टर दैट. रोल ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स एनिमल जनरली हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमने बात करी टुवर्ड्स सिक एनिमल्स. मेक अरेंजमेंट्स फॉर वाटर आउटसाइड योर होम्स फॉर एनिमल्स, इन योर balconies, on your terrace for birds. Try feeding animals and birds generally at the specified spots. उन्हें खाना दें, एक ही पर्टिकुलर स्पॉट पे दें, ताकि उन्हें पता हो हमें यहाँ खाना मिलता है, हमें रोज अलग अलग जगह नहीं जाना, तो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे खाना दीजिए. Speak up when you see animal cruelty being committed against any animal or bird. Silence is appeasement. अगर हम साइलेंट रहते हैं देख के भी एनिमल क्रुएल्टी को, तो हम किसी ना किसी तरीके से उसको बढ़ावा दे रहे हैं. Plant as many trees as possible wherever possible. Plant trees. Encourage people to avoid keeping animals at their home in captivity in cages. Don't use small leash on your pets. Give your pet dogs movement space in home. Avoid using crackers. Don't put colors on animals during festivals. Avoid doing rash driving or blowing loud horns near the animals. Keep the surrounding environment clean. Never throw food wrapped in plastic on roads. This is very important. This is because of milch animals. कभी हम अपना आधा खाया हुआ खाना प्लास्टिक की पन्नी में लपेट देते हैं. We have these two hands to remove plastic, to remove anything. Animals cannot do it. But due to their hunger, due to their starvation, वो पन्नी के साथ खा जाते हैं, which is again very dangerous for them, and with respect to milch animals, very dangerous for us. Avoid squashing insects like ants, mosquitoes or flies. आप अपने घर में जरूर रेपेलेंट्स लगा सकते हैं, दैट्स एक्सेप्टेबल, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, बट स्टॉप स्क्वैशिंग देम. हमने देखा बहुत सारी चींटियां हैं, पैर रख दिया ऊपर, हमने देखा बहुत सारे मस्कीटोज हैं, हमने पैर रख दिया. ये इंसेक्ट्स, ये क्रिएचर्स हमारे लिए बहुत छोटे हैं, हम उनसे बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू नेचर. नेचर भी हमारे साथ ऐसी करती है, क्योंकि बहुत से ऐसी बड़ी चीजें हैं जिनके आगे हम बहुत मिनिस्कूल हैं, लाइक सुनामी, लाइक वॉल्केनो, लाइक अर्थक्वेक. वो ऐसा ही है कि जैसे ह्यूमन बींग पे किसी बड़े आदमी ने पैर रख के स्क्वैश कर दिया. सो एनिमल्स के साथ भी हम यही चीज कर रहे हैं. ट्राई अवॉइड डूइंग देम. यू कैन यू कैन टेक नोट ऑफ सम डेज, इंपॉर्टेंट डेज जो एनिमल्स के लिए होते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग दोज डेज just like we observe other days. Recently we have observed International Girl Child Day. We can observe these days also which are associated with animals, like World Animals Day is on 4th October, World Farm Animals Day is on 2nd October, World Environment Day is on 5th June.
Earth Day is on 22nd April. Once again, before completing my presentation, because time is also running, I'll say children, students have a very, very progressive role to play towards our fundamental duty of having compassion towards animals. Their teachers, जिनके साथ शायद बच्चा सबसे ज्यादा समय बिताता है, teachers are the first role models for every student. Teachers have a very huge responsibility कि वो बच्चों को बचपन से ही compassion towards animals के बारे में भी प्रेरित करें. And this is the requirement of our constitution, which we have to follow. And we need to protect our animals so that our society, so that our earth, so that our nature can be protected. Thank you very much. With this, I complete my presentation and invite any questions which are there. Thank you so much, sir. It was a wonderful session. Not only did we get to know about the laws, but about the role that we can play in prevention of cruelty to animals, which is, I think, the most important thing that we learned today. Without taking much time, I would request the students that they had some questions that they can either turn on their mic and ask the questions, or they can also put their questions in the chat box. We'll take it one by one. Dhruv Verma was asking a question. Child, if you can turn on the mic and ask the question. यस मैम. Yes. Yes. हाँ जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन, मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे अभी सर ने कहा कि सोसाइटी के अंदर जो एनिमल्स हैं हमें उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, लाइक पेट एनिमल्स है, डॉग्स, वही. तो मैम अगर वही पेट एनिमल सोसाइटी या हमें सबको नुकसान पहुंचाए तो उससे बचने के लिए हम क्या करें फिर? Okay. Sir, Please, sir, please go ahead. I think Dhruv has asked. Hello. Hello. Sir, should I? Yes, sir. Hello. Hello, sir, you are audible to us. I want to know the name of the child who has asked the question. Name is Dhruv Verma. Okay, Dhruv, please tell me, अगर कोई एनिमल नहीं, आपका पड़ोसी जो आपके साथ वाले घर में रहता है, वो अगर सोसाइटी के लिए एक न्यूज़ तंग करने लगता है, कभी भी किसी की गाड़ी पे कुछ फेंक देता है या पार्किंग नहीं करने देता, तब आप क्या करोगे बच्चे? What option do you have? तो सर पहले तो हम उसे समझाएंगे, उसकी वजह पूछेंगे ये सब करने की क्या है. अगर वो तब भी ऐसा करता है तो सर हमें उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, जैसे पुलिस को कॉल कर सकते हैं हम. Yes. तो बच्चे यही रिक्वायरमेंट हमारी बाकी कंपैशनेट एनिमल्स के लिए भी होना चाहिए. सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये एनिमल ऐसा क्यों कर रहा है. Why it has become so ferocious? ये काटने लगा, करने लगा है. Is it sick or not? और ये चीज हमारे पास पता करने के लिए नहीं है, हम उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, हम उसे समझा नहीं सकते. तो हमें यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा. वी नीड टू इन्फॉर्म पुलिस, वी नीड टू इन्फॉर्म द कंसर्न्ड वेटरनरी डिपार्टमेंट, वी नीड टू इन्फॉर्म सर्टन स्टेट डिपार्टमेंट कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक एनिमल है विच इज बिकमिंग मेनेस फॉर द सोसाइटी, लुक इनटू इट. They will take appropriate action against that particular animal, but causing harm to that animal, उसे चोट पहुंचाना, उसे मारना, वो उसकी फेरोसिटी को, वो जो अगर काटने की आदत है तो उसे बढ़ाएगा ही, खत्म नहीं करेगा. Dhruv, Okay, does that sir. answer? सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन. जैसे सर धार्मिक बलि के लिए, धार्मिक कोई कोई फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे आपने बताया था नेपाल में एनिमल, इंडिया से एनिमल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं बलि के लिए. तो सर ये बलि कहाँ तक जायज है, जबकि एनिमल्स को तो ये पता ही नहीं कि धार्मिक है, ये तो उनके लिए एक तरीके से अत्याचार ही है. सी, देखो मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी कि लॉ जो है, लॉ का फर्स्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस यही है कि पर्सनल लॉ को कम से कम इंटरफियर करना है. पर्सनल लॉ में इंटरफियर नहीं किया जा सकता. 28 एक्ट में से रिलीजन पार्ट में, रिलीजन अगर किसी एक्ट को, किसी चीज को परमिट करता है तो उसे प्रिवेंट किया. लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसी रिलीजन में कोई पर्टिकुलर सैक्रिफाइस अलाउड है,
दैट इज अलाउड, तो उसमें ये एक्ट नहीं लगेगा. बट स्टिल अगर हम अननेसेसरी क्रुएल्टी कर रहे हैं एनिमल के साथ, हम अननेसेसरी क्रुएल्टी कर देते हैं, स्टिल दिस सेक्शन में अप्लाई, स्टिल दिस एक्ट विल अप्लाई. क्योंकि सबसे पहले मैंने ये कहा था कि अननेसेसरी हार्म नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए. Okay, thank you so much, sir. Any other child with a question? गुड इवनिंग किसी मैम. और का कोई क्वेश्चन है? नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए. सर माय नेम इज ओम तोमर. ओके ओम, पूछिए. Sir, I have a question regarding animal cruelty. Sir, if we will notice any type of animal cruelty or unnecessary pain towards that animal in social media platforms like Instagram, Facebooks, and this type of platform, so how I can respond to that? I think his question is that if he sees animal cruelty on the website, then what he Yes. can do for it? Yes, sir. Very good question. See, child, first thing you can do is to not share it further. आप उसको पहले तो शेयर ना करें. अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के या किसी ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जहां पे ऐसी चीज शेयर होती है, तो आप ये इंश्योर करें कि आप उसके एडमिन नहीं है. तीसरी चीज ये कि आप वहां पे अपना विरोध दर्ज कराएं जिसने भी ये किया है. और अगर आपको पता लगता है, आपको वीडियो से या किसी भी चीज से पता लगता है किसने किया है, तो आप उसे रिपोर्ट करें. ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं. Okay, thank you, sir. ओके ओम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नाम बताइए एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Ashraf ma'am, do we have any other question? If we can request the students to switch on their camera, so we will take one joint picture. If it is possible. Is it possible, students, for all of you to turn on your camera? एक बार सब अपना कैमरा ऑन कर On सकते your हैं? videos, students, video. please on your videos. If you can, please. Yes, students, on your videos. Just for a minute and then we'll free you people. हम एक screenshot लेंगे where all your photos are coming. Samrat, as soon as the cameras turn on, take a screenshot of all the children. Children, smile, please. Okay, I think the screenshot is taken. Okay. Sir, we have a question in the chat box. That will be the last question of the day, and we'll end the session. The question is, good evening, sir. My name is Aman Bhatwal from class 8. Sir, how can we make society aware about the laws that we discussed today regarding animal security? How can we as citizens make the people aware is what I think. See, Aman, the first thing is, जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप कहीं पे क्रुएल्टी होते हुए देखें तो उसकी आवाज उठाएं. पहली चीज, वहां पर जब आपसे कोई पूछे कि क्या हो गया, ये जानवर ही तो है, वहां आप उसे बताएं कि सर है तो ये जानवर, पर इसकी सजा इतनी है, इतना इसमें ये हो सकता है क्योंकि जो आपने किया. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ सेक्शन 11 पढ़ना है. दूसरा, ये चीज होती है जब बच्चे पार्क्स में खेल रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं और वहां पर अगर कोई डॉग आ जाता है या कोई कोई आ जाता है, डॉग आ जाता है, तो स्टोन पेल्टिंग ऑन दैट डॉग इज वेरी कॉमन. उसको पत्थर मारने लगते हैं. आप उन्हें रोकें, आप उन्हें मना करें कि ऐसा ना करें.
और दूसरा, ये जो डेज मैंने आपको बताए ऑब्जर्व करने के लिए, जो 4 दिन बताए मैंने, 2 उसमें से अक्टूबर में ही है, और तो आप ये कह सकते हैं आप इन डेज को ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपका जरूर कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, आप इंस्टाग्राम पे भी होंगे, आप अब शायद फेसबुक भी यूज कर रहे होंगे, तो आप एक उसमें ये कह सकते हैं दैट टुडे इज वर्ल्ड एनिमल डे, दिस डे इज सेलिब्रेटेड फॉर दिस रीजन। तो आप इस तरीके से, जैसे मैं आज आप लोगों के बीच आके एक जागरूकता फैलाने आया हूं, आप लोगों को लॉज और प्रोविजंस बताने आया हूं, वक्त आने पर आप भी अलग अलग मोड्स से इन लोगों को ये कर सकते हैं, इस तरीके से अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं इसके बारे में। Thank you so much, sir. We have also written DSLS से टोल फ्री नंबर्स, अगर बच्चों को और भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1526 पे कॉल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में हमने कॉन्टैक्ट नंबर्स लिख दिए हैं, प्लीज डू नोट देम एंड कॉल अस व्हेनेवर इन नीड। एक बात और मैं बताना चाहूंगी दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड। सभी बच्चों के लिए लीगल एडवाइस कंप्लीटली फ्री है। अगर आपको कभी भी कोई मन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, सिर्फ एनिमल से रिलेटेड नहीं, कुछ भी और होता है जो आपको लगता है सोसाइटी में गलत हो रहा है या आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप हमें कॉल करके टोल फ्री नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके, and again, bringing an end to the session. First of all, thank you so much to our resource person, Shri Sumit Anandji, for sparing his valuable time, coming out with the idea and interacting with children, because seldom we get such kind of views, especially in the lockdown. It has become really monotonous for the students. So this was a very informative and interactive session. Thank you to all the teachers and all the students for being with us, and I hope to join with the children sometime later soon on some other interesting topic. Thank you again. We may end the session. Namaskar. Thank you. Namaskar. I would also like to thank Mr. Sumit sir, Riddhi for this amazing, knowledgeable and riveting session. I hope students and all our participants will surely get sensitized towards animals and will spread awareness in the society as well. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. So much, sir, for awareness us. Thank you. Thank you. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir.